Do you know Mysore Zoo is rated as one of the best zoo in Asia? आज के वीडियो में आप देख पाएंगे टिपिकल हॉलीडे या वीकेंड में आपका मैसूर जू कैसे दिखता है. In this video, we will be sharing all the details in terms of when to visit, the ticket prices, what all activities you can do, and we'll give you complete details of this zoo. So stay tuned till the end for complete details. So let's go. As we are going to the zoo, ये जो road है, this is a newly built aquarium. It is just 500 meters away from the zoo. So let me talk about the distance. From airport it is around 11 kilometer. From the railway station it is around 3 kilometer, and bus stand जो है वहाँ से around 2 kilometers पड़ेगा. You get bus, auto, cab from any place of the city to this zoo. This is the entry. फ्रेंड्स, आज हम जो आए हैं ये मैसूर ज़ू है, काफ़ी फेमस है, और आज हम वीडियो में आपको पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको बता देंगे. सो चलिए, लेट मी टॉक अबाउट दिस ज़ू. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चामराजेंद्र जूलॉजिकल पार्क, एंड द रीज़न बीइंग, तो जब एस्टेब्लिश किया था उनका नाम था चामराजेंद्र वडियार, और वो 23rd रूलर थे यादव डायनेस्टी के, और उन्होंने इसको बनाया था 1892 में. He had engaged, Mr. Kunbegal, जो जर्मन लैंडस्केपर और हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, बोटनिस्ट हैं. सो ही क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लैंडस्केप, एंड उसका पूरा डिज़ाइन उन्होंने किया था. एज वी आर टॉकिंग, यू कैन सी दिस टिकट थिंग, यू कैन बुक इट ऑनलाइन स्कैन करके. ये नंबर वगैरह आई विल शेयर इट विथ यू गाइस, यू कैन यूज़ इट फॉर टू बुक ticket online. So on his name, the zoological park was named as Chamarajendra Zoological Park and Garden, and later on it is popularly known as Mysore Zoo as well. This is where the entry gate is. You have to show your ticket and enter inside. As we are entering the zoo, so like I was saying, this zoo garden was initially designed not for the amusement of king or royal. We are talking, you can see these electric vehicles place here. You have to book the ticket and wait for the vehicle in queue. Coming back to the initial purpose of it was not only to for the amusement, but also it was more to educate people in terms of state of wildlife, and the breeding of rare species was supposed to happen here. So that was the main aim. As you can see this map here, बहुत अच्छे से जगह जगह पे ये दिया गया है. इनिशियली ये जब स्टार्ट हुआ था, it was only at a area of 11 acre, 10.9 acre in 1917, and additional 7 acre was added again later on, and it was again expanded to 45 acres, and it was given to Mr. Hughes from Australia. मिस्टर ह्यूज जो थे उन्होंने इसका सुपरवाइज किया, अच्छे से इसको मैनेज किया, एंड लेटर ऑन दे हैड एडेड अनदर 50 एकर्स ऑफ कैनिंगस्टन गार्डन, एंड ऐसे बढ़ते बढ़ते ये अभी हो गया है 157 एकर्स का, इंक्लूडिंग 77 एकर्स ऑफ एरिया ऑफ करंजी लेक. दैट इज क्वाइट फेमस लेक एज वेल. वी आर इन द बर्ड सेक्शन. पहले जो शुरू में ही पड़ता है, वैसे बहुत सारे बर्ड्स हैं. लेट मी टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बर्ड्स जो यहाँ पे हैं. एक बार हेडेड गूस है, ब्लैक स्वान है, ब्लू गोल्ड मकाओ है, ब्राउन ओल है, एंड कॉम डक, एंड डार्विन्स रेया, डस्की लोरी, कॉमन ऑस्ट्रिच भी हैं यहाँ पे. पैरेट में भी बहुत सारा के पैरेट्स हैं, काकाटू भी है, गोल्डन फेजेंट भी है, लेडी फेजेंट, एंड वाइट पेलिकन, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भी है यहाँ पे, and Livingston's tobacco, military macaw, night heron, painted stork, ruddy shedlock, scarlet ibis, and scarlet macaw, silver pheasant, spoonbill, sulphur crested cockatoo, and toucan, and white peacock, and many more kind of birds are here. Almost 150 plus bird species are there. सारे तो मैं नहीं बोल सकता, but जो main है, I try to tell it to you. As we are seeing the different type of birds, यहाँ पे flightless birds भी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं. Ostrich, रेया, क्रॉसवेरी एंड एमो वगैरह भी हैं जो कि सब एक जगह पे हैं. इट्स अ रेयर केस. और डक्स वगैरह भी वैरायटीज ऑफ डक्स यहाँ पे हैं. मस्कोवी डक, स्पॉटेड व्हिस्लिंग डक, एंड कॉम डक, कैरोलिना वुड डक, तरह तरह के डक्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं.
और ये जू का जो खास बात है, दे कंटिन्यूसली एक्वायर सम ऑफ द एक्सोटिक स्पेसीज एंड फॉरेन जू से भी लाते हैं, सेंट्रल दूसरे जू से भी लाते हैं. दे डू नॉट टेक इट फ्रॉम द फॉरेस्ट. और इसकी जो हाईलाइट है, द क्लीनिनेस, द विजिटर फ्रेंडली दैट इट इज, एंड द मेंटेनेंस ऑफ द ग्रीनरी थ्रू आउट द ईयर, डेवलपमेंट ऑफ द गार्डन, continuous planting in saplings, ensuring the cleanings and cleanliness is there, avoiding any littering, plastics especially, no plastics and covers are allowed inside, and educating visitors as well about the plastic free zone. Sustainability mein they work on rain harvesting water, and solid waste management, and establishment for live feed units. So all these things are very helpful for the upkeeping of the zoo. That's why you see the zoo attracts almost 3 million visitors annually, and that's why it is quite famous and one of the attractive tourist center in the country. As we are talking, you can see the beautiful Bengal tiger. So talking about cats, you have Bengal tiger, white tiger, you have leopards and lions, jaguar, cheetah. So it's a unique combination. You have all the big cat family. As we are seeing these beautiful tigers, among the popular animals in the zoo, there are obviously big cats और owls, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखेंगे आगे जाके, वो यहीं पे बॉर्न हुए हैं और रेज हुए हैं. तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे ब्रीडिंग वगैरह भी कराते हैं कैप्टिव में. बहुत अच्छा चीज़ है. और इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है वो इसकी मेटिकुलस प्लानिंग है. हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं इम्प्रूव करने के लिए, रिक्रिएट करते हैं एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट बनाने के लिए. हमेशा कोशिश करते रहते हैं. ये इसको सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है. और उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. 1877 में लार्ज एप को यहाँ लाने के लिए दे हैड बिल्ट एनक्लोजर विद अ बिग ट्री, bushes and lush green grasses, so that they can roam around freely and comfortably. और उसके बाद they had got pair of gorillas that got orangutan and chimpanzee were acquired from other zoos. और ये इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था उस टाइम पे कि लार्ज एप्स वर एट वन प्लेस इन इंडिया टू बी सीन. आप जैसे देख सकते हैं ये गोरिल्लाज हैं. काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है. ये ग्लास से आप बाहर से देख सकते हैं. यू कैन हैव अ क्लियर व्यू. सो इट वाज लव फॉर द एनिमल्स दैट द किंग हैड, एंड ही यूज्ड टू केयर फॉर द एनिमल्स. उनके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा हैबिटेट मिले उनको. So he used to care for during his tours to Europe and Africa. Maharaja used to select bring different interesting animals which are not in India, which were not there at that time in India. जैसे कि चिंपांजी हो गए, giraffe, antelopes, primate, bears and many more. आप देख सकते हैं जगह जगह पे ये मैप्स वगैरह वी आर टॉकिंग. सो जैसे मैं बोल रहा था, इसीलिए ये जू इतना ज़्यादा फेमस और यूनिक हो जाता है. दे हैव नीश ऑफ कीपिंग ऑल द डिफरेंट एनिमल्स, जैसे कि कैलिफोर्नियन सी लायंस, अमेरिकन बाइसन्स, गुनाको, सेक्रेटरी बर्ड, पोलर बेयर, पेंगुइन, कैंगरू, वाइट एलिफेंट एंड मेनी मोर. एज वी आर टॉकिंग आप देख सकते हैं ये एक बोर्ड लगा हुआ है थ्रेड्स एंड पोचिंग के लिए. There are many such boards you will see on the way when you are visiting. This is the library. So they have a nice library as well. अगर आप थोड़ा बैठना चाहें, रेस्ट करना चाहें, पढ़ना चाहें, so they have that. Like I was saying, they have more than 100 1500 specimens, जिसमें से 150 species जो हैं बाहर countries के हैं, almost from 25 different countries से. आप fortunate कर लें, unique चीज़ कर लें. They have this thing of acquiring different species from foreign countries. This is the place to have some water. So this is a very nice thing they have. In every 1 or 2 kilometer they'll have this place where you can drink water. RO water का रहता है, and you can sit as well. और एक चीज़ जो बहुत अच्छा है इनका कि दे आर गुड इन ब्रीडिंग प्रोग्राम एज वेल, विद ब्रीडिंग ओवर मोर देन 100 स्पीसीज, जिसमें इन कैप्टिविटी, जिसमें ये इनको गुड स्पेस, नेचुरल सेटिंग और सेफ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं ब्रीडिंग करने के लिए. ऑल्सो यहाँ पर कोई एनिमल अगर अबैंडन्ड है, डिजर्टेड एनिमल कहीं पे है, कोई इनको पता चलता है, तो दे ब्रिंग, और कोई एनिमल अगर बैड कंडीशन में, दे हेल्प देम ब्रिंगिंग हियर एंड टेक केयर ऑफ दोज एनिमल्स एंड कीप देम इन द जू एज वेल. और यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है जू एजुकेशन प्रोग्राम एज वेल. जो मैं बोल रहा था, एजुकेशन एक प्रायोरिटी है यहाँ पर. थ्रू आउट द ईयर होता रहता है. ये इन्वॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स को, NGOs को और रिसोर्स पीपल को एंड वॉलंटियर्स को.
एंड हर साल 15 से 20 हज़ार लोग करीबन ये प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं. As you can see, this is the enclosure for gorillas, chimpanzee वगैरह के लिए. तो like I was saying, they have given 50 acres of zoo land for establish करने के लिए history museum, which will enhance the educational potential of the zoo, or it will reach out to people like physically challenged, special group of people, children. Literally competitions, celebrating wildlife week as well, world environment, ये सारा कुछ करने के लिए, कैंपिंग वगैरह करने के लिए ये सब जगह they have these things going on for them as well. जैसे कि मैं कह रहा था, they adopt animals as well, एंड यहाँ पे हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी अंदर ही है इसके. 3 vets are always there, they are equipped with all modern hospital, laboratory, x-rays and everything, all the facilities. As we are talking, you can see one lioness is sitting there, which looks really amazing, really beautiful. इनके लिए visitors बहुत important है, and that's why they provide all the facilities that they can. बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, लॉन्स वगैरह है, टोल फ्री टॉयलेट्स फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं, आरओ ड्रिंकिंग वाटर जगह जगह पे आपको मिल जाएगा, फूड कोर्ट है अंदर, लाइब्रेरी जैसे मैंने आपको दिखाया, व्हील चेयर फैसिलिटी वगैरह है, अम्ब्रेलाज वगैरह भी आप बोरो कर सकते हैं. So that's why making them customer friendly and customer centric has made them popular as well. As we are talking, you can see a zebra as well यहाँ पे. और ये जो जू है, इट इज़ जस्ट 700 मीटर्स फ्रॉम द पैलेस. और पहले चामराज वडियर क्योंकि इसका बिल्डअप किए थे उन्होंने, तो इनिशियली इट वाज कॉल्ड एज पैलेस जू, एंड लेटर ऑन इट वाज रीनेम्ड एज चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स इन 1909. एंड उसके बाद फिर जैसे मैं बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलियन ह्यूज फ्रॉम साउथ वेल्स जो आके ही रीफैशनड इट, और इसका कम्प्लीटली लुक इन्होंने चेंज कर दिया विद ऑल मॉडर्न एंड नेचुरल एनक्लोजर्स. So that is some interesting fact about the zoo. And in 1948, the management of the zoo was developed to the Department of Parks and Gardens by the government of Mysore. And like I said, initially उसके उसमें 50 acres add हुआ, then it became 150 acres, 57 acres almost. And now they have acquired Karanji Lake as well. And उसके अंदर उन्होंने एक artificial आइलैंड भी बनाया है टू मेक इट एज अ सैंक्चुरी फॉर बर्ड्स. 1972 में द जू वाज गिवन टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एंड लेटर फिर 1980s में जू वाज अगेन टेकन बैक बाय द अथॉरिटी ऑफ कर्नाटका. As we are talking, we have come towards the deer enclosure. ब्लैक बक और स्पॉटेड डियर्स हैं, और इस तरफ आपके हॉक डियर, बार्किंग डियर, स्लॉथ डियर, हाइलैंड. तो ये जू जो है 100 ईयर्स कंप्लीट किया था 1992 में. ये आप देख सकते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर. लाइक आई वाज सेइंग, ये 100 ईयर्स कंप्लीट किया था 1992 में. काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था. एंड आप देख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा था कि अभी नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 125 ईयर्स ओल्ड. सो ऑलमोस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड एज वेल. वन ऑफ द अदर थिंग पीपल लेस नो अबाउट इट इज़ करंची लेक, जो कि ऑलमोस्ट 77 एकर्स एरिया में फैला हुआ है. काफ़ी बड़ा एरिया है. 1970s में it used to be garbage dump. People used to throw stuff, और बहुत गंदा था. It was very bad condition में था. और उसके बाद गवर्नमेंट of Mysore government ने taken up this thing, and they had given this to Asian Development Bank, this project to clean and restore the lake. एंड उसमें उस टाइम पे ऑलमोस्ट 1.1 CR का खर्चा हुआ था. बट आफ्टर दैट वंस दे रिस्टोर्ड इट एंड डेवलप्ड इट, इट वाज रियली नाइस एंड रियली ब्यूटीफुल. देन ऑल दीज बर्ड्स स्टार्टेड कमिंग इन, एंड नाउ इट इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल साइट टू सी. कभी मैं इसका ब्लॉगिंग करूँगा तो आपको दिखाऊंगा इसके बारे में और बताऊँगा डिटेल में. वी आर सीइंग इन द बैकड्रॉप ब्यूटीफुल डियर्स. मैं जू ने और एक अच्छा काम किया है कि दे हैव गिवन 5 acres land to Natural History Museum, जहाँ पे दे विल एनहांस इट फर्दर फॉर एजुकेशनल पोटेंशियल ऑफ द जू. लोगों को ज़्यादा इसके बारे में और एजुकेट करेंगे, हिस्ट्री, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताएंगे, और एक्वाटिक बर्ड्स, ट्रॉपिकल एनिमल्स, उनके बारे में बताएंगे. Now there are some bad incidents that also had happened during 2004 and 5. उस टाइम पे लायन टेल मकाओ was found dead, और एक एमू और एक टाइगर भी मिस्टीरियसली उसका डेथ हुआ था. उसके बाद 4 में एक एलिफेंट का डेथ हुआ था, हाथी का.
और उसके बाद और एक एलिफेंट का भी डेथ हुआ था। वैसे ही ऐसे हुआ तो व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग सम इन्वेस्टिगेशन, दे फाउंड दैट द कपल ऑफ एलिफेंट्स उनको पॉइजन किया गया था। बिकॉज ऑफ दिस क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टाफ्स वर आल्सो सस्पेंडेड बाय द अथॉरिटी। 2017 में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंजा 6-7 बर्ड्स आल्सो डाइड। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट, देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट। ये तो सारी इंसिडेंट्स हो गई, बट देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स, लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स टू टॉक अबाउट। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ग्लास एनक्लोजर्स वगैरह हैं, एवरीथिंग दैट दे प्रोवाइड इज एट अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। बहुत अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट विजिटर्स के लिए भी रहता है, सो दैट दे कैन कहीं पे भी बैठने के लिए जगह जगह पे बेंचेस वगैरह हैं, वाटर RO सब जगह है पानी पीने के लिए इन एवरी 1 or 2 किलोमीटर्स। देख सकते हैं जगह जगह पे बैठने के लिए भी जगह है। Talking about the elephants, as you can see beautiful elephants in the distance. There are currently 10 elephants, and they have more elephants than any other zoo in India. Almost total of 34 elephants have stayed here in the zoo, जिसमें से कुछ ट्रांसफ़र किए गए टू अदर जूज एज वेल। तो ये एक चीज़ है, और इनका काफ़ी अच्छे से टेक केयर करते हैं यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा एरिया दिया हुआ है सो दैट दे फील बिकॉज एलिफेंट नीड large space, and you can see these bisons, and talking about some of the rare animals that are there in the zoo. Green anacondas, they have been given by Colombo Zoo, and they have like I was saying, chimpanzee, gorilla, orangutans, cheetah, white rhinos, and giraffe as well. These are all the unique animals. आप ये देख सकते हैं जगह जगह पे ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं। आप देख सकते हैं नज़दीक में से एकदम से बाइसन को। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम पॉइंट्स विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे। तो जू की टाइमिंग जैसे है 8:30 AM से लेके 5:30 PM तक सारे दिन खुले रहते हैं, एक्सेप्ट ट्यूसडे इज़ देयर हॉलीडे। एंड अगर आप जू कैंपस में आते हैं सो जस्ट कम 2-3 आवर्स बिफोर क्लोजिंग आवर्स, सो दैट यू कैन रोम अराउंड, अच्छे से घूम पाएंगे। और एनिमल्स जो हैं 11 AM से लेकर 3 PM तक दे टेक रेस्ट, सो उस टाइम पे बिकॉज ऑफ द हीट एंड दोपहर का टाइम होता है। और बर्ड्स जो हैं और अदर एनिमल्स दे आर मोस्ट एक्टिव इन द मॉर्निंग टाइम और आफ्टर 3 PM टाइम। सो लाइक आई वाज सेइंग, द इंडिकेशंस अगेन आर देयर, राइनोज कहाँ पे हैं, रेस्टोरेंट कहाँ पे हैं, एग्जिट कहाँ पे हैं, ऑल द इन्फॉर्मेशन दे हैव गिवन, सो इट इज़ हेल्पफुल एज वेल। तो सम पॉइंटर्स विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप पहले से अगर ये जान लें तो कंफर्टेबल फुटवेयर पहनिए, क्योंकि आपको बहुत चलना होगा, एंड लूज क्लॉथ्स रहेंगे तो वो भी इजी रहेगा आपके लिए, बिकॉज अगर गर्मी के टाइम पे जाते हैं, दिन के टाइम पे यू माइट स्वेट एज वेल बिकॉज यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ वॉकिंग। इट्स अ बिग प्लेस लाइक आई वाज सेइंग 157 acres। कैरी बॉटल, प्लास्टिक बॉटल अलाउ नहीं करते हैं, तो अगर स्टील बॉटल वगैरह रहेगा दे अलाउ, एंड यू कैन फिल इट। We are talking, you can see certain places are developed by Infosys as well, other corporates as well. These are all shops, you have to have cash. These are all cash counters. Hardly you see Google Pay or Phone Pay working here. As you see these restaurants and other shops here, it will be a great experience if you're traveling. तो टिकट वगैरह रहेगा 100 for adults and 50 rupees for the kids. कैमरा के लिए there will be a separate rate. For the battery operated vehicles there will be a separate rate as well. Corporate, like I was saying, corporate companies are sponsoring many animals and many development they are doing, which is a very good thing. And the prices the zoo has kept is well in balance, so that everybody can afford it. It's good for the kids. For 100 rupees, 50 rupees, it offers for a great value. Those lines that you see, all the houses, those are all reptile centers. तो क्योंकि ये 4-5 किलोमीटर का रहेगा, you have to walk a lot, and it is well maintained and conveniently located. Water points इसके भी हैं, restrooms वगैरह throughout हैं. Overall it is a nice place for a family outing, and it's a must visit. If you are a wildlife enthusiast, you should definitely visit. Now at a reptile area. तो this side है आपका crocodile, pelican, jaguars वगैरह, और इस तरफ है ब्लैक स्वान, जिराफ और हिपोपोटामस की तरफ। और यहाँ भी आप देख सकते हैं मैप, जगह जगह का मैप दिया गया है। So we'll go towards this side. तो एक चीज़ जो मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे, कीपिंग एनिमल्स बाकी जू में जो गया हूँ कंपेरेटिवली, ये पैलेस आप देख सकते हैं,
or as we are talking, they maintain it. I mean, they keep the hygiene and everything, taking care of the animal. It is a big task, but they do it very meticulously. बहुत अच्छा लगा ये देख के मेरे को. और जो नेम बोर्ड्स दिया गया है और एक्सप्लेनेशंस जो प्रोवाइड किए गए हैं सब जगह पे, दैट इज रियली गुड. आई लाइक इट. यहाँ पे देख सकते हैं मॉनिटर लिजार्ड. As we are talking, you can see जिराफ जो कि यहाँ का USP है, वन ऑफ द पॉपुलर थिंग. बैटरी ऑपरेटेड कार्ट ऑल्सो, क्योंकि बहुत बड़ा जगह है, घूमने के लिए काफ़ी है. ओल्ड पीपल अगर हैं तो यू कैन बुक इट, ऑनलाइन बुक कर लीजिए. इट विल बी ईजी फॉर यू, यू विल बी गिवन प्रायोरिटी. और वीकेंड में अवॉइड कीजिए बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्कूल ट्रिप्स दैट हैपेंस हियर एज वेल. इलेक्ट्रिक बैटरी वाला जो गाड़ी है, इट इज 200 आई गेस, and overall it was a great experience that we had, as we are coming to an end of the our visit. And it took us almost 4 hours, and we took a lot of videos, photos. And then जैसे बोल रहा था, अंदर souvenir shop हैं, food complexes हैं, which are good add-ons that this zoo has. तो मेन अट्रैक्शन में जिराफ तो है ही, उसके अलावा आपका वाइट पिकॉक्स, राइनोसरस एंड गोरिल्लाज, ये सारे कुछ हैं. सो ऑल इन ऑल वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. यू लेट अस नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो. विल शेयर ऑल द डिटेल्स in terms of how to reach and what all, how to book the tickets, all the website address and everything I'll provide. And do let us know how did you like the video, and if you have already visited, do let us know your experience as well. Thank you, take care, bye bye.